So let's start my lecture. Today, basically, I am an orthopedist as well as orthopedic surgeon. So Arshad Sahab has entitled this, giving me the topic is common musculoskeletal disorders and exercises prescriptions. And these exercises prescription and known, you are supposed to know this disorders is very important for the physical health education students and research scholars. So my next slide is basically musculoskeletal disorder. Basically it is affect the muscles, bones, joints, tendons and ligament. है ना? Muscles, bone, joints, tendon and ligaments. Now the person who are not from the medical field, they must know the differentiation between the ligament and the tendon first. Okay? Ligament are the structures, fibrous structures, we connect the bones, two bones, and they give the stability to the joint. And the tendon are, they are the part of the muscles. है ना? Muscles are attached with the bone in the form of the tendons. So the injuries and the diseases of both are different. Okay, that's why you are supposed to be familiar with these two terms. Now next is musculoskeletal injuries can occur due to various causes. The causes are different. Number one is trauma. If there is a trauma to the musculoskeletal system, then they give rise to the fracture, they give rise to the dislocations, they give rise to the sprain, they give rise to the strain. If there is injury to these structures of the musculoskeletal system. Now if there is a overuse, this is the common which gives rise to at least 20 diseases of the musculoskeletal system. Overuse is injuries develop gradually over the time. They are not acute नहीं होती हैं. They develop gradual over the time due to repetitive action. मेन कॉज क्या होता है? रिपीटेटिव एक्शन. किसी भी जॉब में, किसी भी जगह में, किसी भी प्रोफेशन में अगर रिपीटेटिव एक्शन है, दैट गिव राइज टू द ओवर यूज इंजरीज. और प्रोलॉन्ग स्ट्रेस ऑन ए पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स. स्ट्रेस का मतलब किस पर्टिकुलर पोजीशन में आप बैठे हुए हैं, दैट गिव राइज टू लॉट ऑफ डिजीजेज ऑफ द जॉइंट्स एंड द ऑल्सो द बैक and also can give rise, can affect every part of the body. Now common example includes tendinitis. Anywhere if that word is the term is itis is at, there is an inflammation. So if this is an inflammation of the tendons. Bursitis. Bursa is a bag-like structure, fulfilled structure, which is between the bone and tendons. So give rise, if there is an inflammation of the bursa, it gave rise to the bursitis. Another stress fractures. है ना? Stress fracture is also one of the example of the overuse. है ना? Army personnel, है ना? Stress fractures होते हैं उनमें. Now overuse injuries are commonly seen in athletes, musicians and individuals with physically demanding jobs like the computers. The person who is doing the job on computer continuously, the person who typing the Shamshad market for 8 hours, 6 hours, there is the chances of overuse injuries. Now third mode of injuries is degenerative conditions. These are age-related conditions, and the degenerative conditions such as the osteoarthritis and degenerative disc diseases result from the natural wear and tear of the musculoskeletal system over the time. है ना? It is a age-related process. So these conditions can cause joint pain, stiffness and the reduced mobility of the joints. Now fourth category is the inflammation and infection. In this category, inflammation of the musculoskeletal system can occur due to autoimmune disorders like rheumatoid arthritis. It is because of the antibodies against the system, and or infection conditions like the septic arthritis. These conditions can cause the joint swelling, pain and limited movements. So these are the 4 ways or modalities to develop the musculoskeletal disorders. The next slide is this musculoskeletal disorder also known as the repetitive motion injuries. As I have told you in the definition, repetitive motion injuries or repetitive stress injuries or overuse injuries. So these are the synonyms for the musculoskeletal disorder. Besides, the one is excluded from this is injury because of the trauma. Injuries
because of the trauma. They also comes in the injuries because the trauma also come within the category of the musculoskeletal disorders. Now what are the body parts which are affected in this? वो पॉइंटर है क्या? पॉइंटर है अर्षद? नहीं. So these are the different parts of the body. Everyone is familiar. This is the head and neck area. This is the shoulder area. This is the elbow area. This is the hand and wrist area. And this is the trunk area. Again, this is the hip area. This is the knee area. This is the thigh area. This is ankle and foot. Okay. So now this I have shown the different diseases, different type of the disorders which affect a particular area, like the cervical spondylosis, thoracic outlet syndrome, tension neck. This affect this area. Okay. These are the categories which affect this area particular. Now the shoulder tendinitis, rotator cuff tendinitis, bicep tendinitis, shoulder capsulitis, it affect this area only, shoulder area only. Then this is the medial epicondylitis. This is the medial, there are two condyle over the elbow, lateral epicondyle and medial epicondyle. If the lateral epicondyle is affected, it is known as the tennis elbow. If the medial is affected, then it is the golfer elbow, right? Then forearm pain, the pain of these tendinitis referred to the forearm. Forearm pain is also. Then in the lateral epicondyle I have already covered. Then these are the three: carpal tunnel syndrome, wrist tenosynovitis, and de Quervain's disease is affect the wrist area, wrist and thumb area, this area. Okay. Now this and then is the back pain. This is the area of the back. From is the gluteal cleft up to the here the root of the neck. This is the back area. So this is the back pain, hand arm vibration syndrome, hip osteoarthritis. These are the hip osteoarthritis affect this area. Then knee osteoarthritis, then the knee meniscus injuries, and the bursitis. So these are the categories of the diseases which affect the different area of the body. Okay, is it clear to everyone? Now next is, first is in detail is the osteoarthritis. As I have told you, it is a degenerative type of the disease, mainly affecting the articular surface or large joints mainly, and it is mostly associated with the aging and will most likely affect the joints continually spread throughout the years, including the knees, hips, fingers and lower spine. Okay. So there are two types of the osteoarthritis: primary osteoarthritis and secondary osteoarthritis. Primary is there is no prior conditions, and secondary is because of the secondary to the something else, either the congenital trauma, पोस्ट ट्रोमेटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, ट्रॉमा हो गया आपको, उसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन हुआ या जॉइंट स्पेस रिड्यूस्ड हो गया, तो दैट्स कम इनटू द सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस. न्यूरोलॉजिकल जॉइंट डिजीजेस, दे आर वेस्कुलर डिजीज, ऑल कम्स इन द सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस. नाउ कॉजेज, द मेन कॉज इज कार्टिलेज डीजनरेशन, कार्टिलेज डीजनरेशन, एजिंग एंड जॉइंट ओवरयूज. जॉइंट ओवरयूज का कैसे? द सपोज वन पर्सन इज रिसाइडिंग इन द टॉप फ्लोर and there is no lift in apartments, then is a most likely he will end up into overuse injuries, will end up into the osteoarthritis of the knee and the hip joint. And what are the exercises? What are the exercises prescribed? We are not going detail about the management. Management is basically medicine management and the prevention. The doctor have advised me to more emphasize on more on the exercises. So this range of motion exercise, first is range of motion. Range of motion में you are supposed to do knee extension and flexion, है ना, knee extension and flexion like the shoulder circle, है ना, shoulder की अगर problem है you do the shoulder circles, और also known as pendulum exercises. पेंडुलम एक्सरसाइजेस कैसे करते हैं? बेसिकली हम तो एक एनाटॉमिकल एक्सरसाइजेस करते हैं, ये है ना, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, ये एनाटॉमिकल एक्सरसाइजेस है. पेंडुलम एक्सरसाइजेस, वंस यू गो लाइक दिस एंड मेक ए सर्किल, ये मेक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जस्ट लाइक ए पेंडुलम. सो दिस इज द फॉर द स्टिफनेस और द शोल्डर जॉइंट. दिस इज नोन एज द शोल्डर सर्किल्स एक्सरसाइजेस. नेक्स्ट इज स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस फॉर दिस ऑस्टियोआर्थराइटिस इज quadricep strengthening, or those quadricep strengthening, leg raise squats exercises, quadricep strengthening, quadricep drill पता है आपको? quadricep कैसे करते हैं? quadricep strengthening exercises,
स्क्वेटिंग इज द एडवांस फॉर्म. इनिशियल स्टेज में यू आर सपोज टू आस्क समवन टू सिट ओवर द टेबल एंड जस्ट रेज योर लेग in a straight position, and then dorsiflexion of the foot. Dorsiflexion of foot and hold is for 20 seconds. 20 and 10 repetitions. So this is the quadricep drill. This is also known as quadricep drill. Okay, this is one of the way of doing. Another way is just keep the limb in extension over the table. Keep the roll of the towel in just behind to your knee and press the towel. Just press the towel by your back pressure of your quadriceps muscles. And quadricep muscle is basically a composite of 4 muscles. The quadricep muscle is a muscles of the anterior compartment of the thigh. This is known as anterior compartment of thigh. This is also known as the flexor compartment. This is extension compartment of the thigh. Okay, the 4 muscles are rectus femoris and 3 vastae. Vastus medialis, intermedius and lateralis. These 4 they in as a single known as quadricep femoris, quadricep muscles. Next exercise is low impact cardio, cycling. Low impact cardio, cycling and swimming. The best exercises for osteoarthritis. Best exercises for the mobility of the joint. Best exercise for the freeness of the joints. Low impact. This is known as the low impact cardio exercises. Then is the balance exercises. Balance is heel to toe walking. Heel to toe walking. आप पहले एक बार टोस पे जाइए, फिर हील पे आइए, फिर टोस पे जाइए, फिर हील पे आइए. दिस इज हील टू टो वॉकिंग. एंड द सिंगल लेग स्टेंस, एक टांग पर खड़े होने वाली सिंगल लेग स्टेंस, एक टांग पर खड़े होने के बैलेंस बनाने के लिए, अपना स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए. सो दीज आर द एक्सरसाइज फॉर द ऑस्टियोआर्थराइटिस. Now more exercises, as I have told you, knee flexion extension, lying your back with your knee straight, slowly bend. आप लेट के भी कर सकते हैं इन एक्सरसाइजेस को. क्वाड्रिसेप्स की फ्लेक्शन एक्सटेंशन ये एक्सरसाइजेज है, आप लेट के भी कर सकते हैं. आप बेंड करिए उसको और होल्ड द पोजीशन फॉर 10 सेकेंड्स एंड देन रिटर्न टू द स्ट्रेट पोजीशन. दोबारा से उसे सीधी कर लीजिए. सो दिस इज नोन एज फ्लेक्शन नी एक्सटेंशन इन लैंग डाइंग पोजीशन. देन इनर रेंज क्वाड्रिसेप्स. इनर रेंज क्वाड्रिसेप वो है जो हमने आपको बताया कि पैर सीधा करके टेबल पे उसके नीचे टॉवेल रख के, दैट इज कॉल्ड एज इनर रेंज क्वाड्रिसेप एक्सरसाइजेस. ठीक है, उसमें टाइट करना होता है थाई मसल्स को और नीचे प्रेस करना होता है, होल्ड करना होता है, देन फॉर रिपीट फॉर 10 टाइम्स. देन इज द क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथिंग, सिट टू स्टैंड. ये स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेज है. वो ड्रिल था, ये स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज है. सिट टू स्टैंड, एक बार खड़े होना है, फिर बैठना है, फिर खड़े होना है, फिर बैठना है. ठीक है, दिस देन नोन द क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेज. These are 3 pictures. I have told you. This is the knee flexion extension exercises. Flexion, फिर उसको सीधा कर देंगे, extension. This is your, ये रोल लगा हुआ है, इसको दबाना है नीचे. This is no inner range quadriceps and quadriceps strengthening. Is it clear from the diagram? Now 4th exercise is quadriceps strengthening, mini squat. This is known as mini squat. यानी यूजिंग ए चेयर फॉर बैलेंस. ये चेयर पकड़ ली, उसमें हाफ आप स्क्वाट करके खड़े हुए, रोके हुए होल्ड करके. दिस इज ए मिनी स्क्वाट. स्क्वाट डाउन, बेंडिंग बोथ नीज बट कीपिंग द बैक स्ट्रेट. स्क्वाट शुड बी नो मोर देन 45 डिग्री. इसका ये एंगल है, दिस शुड नॉट बी मोर देन 45 डिग्री. द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज काफ स्ट्रेंथिंग हील रेज साइड. है ना, हील को रेज करना, उठना, फिर नीचे होना, उठना, फिर नीचे होना. सो दिस यूजिंग ए चेयर फॉर बैलेंस, पुश अप ऑन टू योर टिप्स, टोज एंड बैक डाउन अगेन. नेक्स्ट इज स्टेप अप. स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए स्टेप, स्टेप अप 10 टाइम्स. स्टेप एक छोटा सा स्टेप है, उस पर आप ऊपर जाके खड़े होइए, फिर उसे नीचे होइए, खड़े होइए और फिर नीचे होइए. दिस इज नोन एज स्टेप अप, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए स्टेप. देन इज अ क्लैम. क्लैम इज लाई ऑन योर साइड विद योर नीज बेंड. साइड से लेट जाते हैं, है ना, लेटरल पोजीशन में, नी को बेंड कर लेते हैं. अब बटक मसल्स को टाइट करते हैं, वॉलेंटरीली टाइट करते हैं, खुद सिकोड़ने की कोशिश करते हैं. एंड उसके बाद लिफ्ट करते हैं उसी बेंड नी को
लिफ्ट करते हैं एज फार एज यू कैन विदाउट लेटिंग योर pelvis रोटेट. pelvis को रोटेट नहीं होने देना है. आई विल शो यू द डायग्राम ऑल्सो. नेक्स्ट इज द हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच. हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच में स्टैंड अपराइट एंड प्लेस द फुट ऑफ योर अफेक्टेड लेग ऑन ए स्टेप. स्लोली लीन फॉरवर्ड द हिप. आपको ऐसे करके खड़े होकर आगे आपको हैमस्ट्रिंग को पीछे वाली मसल्स जो है आपकी जो बैक ऑफ द थाई पे मसल्स हैं उसको आपको स्टेप पे खड़े होकर आगे झुकना है, बेंड करना है, उसको स्ट्रेच करना है. नेक्स्ट इज द क्वाड्रिसेप स्ट्रेच. स्टैंड अपराइट होल्डिंग ऑन टू ए फर्म सपोर्ट. खड़े हो जाना है. लूप ए टॉवेल अराउंड एंकल ऑफ योर अफेक्टेड लेग, है ना. उसको एंकल को उसको पकड़ के उसको खींचना है. कीप योर बैक स्ट्रेट एंड यूज द टॉवेल टू पुल अप योर हील टूवर्ड्स द योर बॉटम टू फील ए स्ट्रेच एट द फ्रंट ऑफ योर थाई, है ना. ऐसे करके खींचना है उसको पकड़ के. इलास्टिक बैंड ले लिए या टॉवेल ले लिए आप इसको. देन अ काफ स्ट्रेच. स्टैंड इन ए वॉकिंग पोजिशन विद द अफेक्टेड लेग स्ट्रेट बिहाइंड यू एंड अदर लेग बेंट इन फ्रंट ऑफ यू. ये दिस विद ये वाली एक फ्लेक्स है और एक स्ट्रेच है. दिस इज ऑल्सो फॉर काफ मसल्स. नाउ दीज आर द डायग्राम्स. वन इज द क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथनिंग, है ना, मिनी स्क्वाट. दिस वन इज द काफ स्ट्रेंथनिंग. टोस पे खड़े होना, नीचे होना, हील रेज एंड द स्टेप अप. ओके, ये फर्स्ट वाली है तो ये 45 डिग्री एंगल इतना ही है. इतना ही होता है. इससे ज्यादा अगर पूरा नीचे जाते हैं चले जाओ तो स्टेमिना 60 पे भी जा सकते हो आप. ये स्पेसिफिक थोड़ी है कि 45 भी होगा. मिनी को रिप्रेजेंट करता है. मिनी को रिप्रेजेंट 45 पे इफेक्टिव होगा जिस मकसद से किया जा रहा है ना. देन इज द क्लैम. दिस इज क्लैम. रोटेशन नहीं होने देना है. फ्लेक्स करना है अपर लिम्ब को, ठीक है, उसको, और उसको रोटेट नहीं होने देना है. देन हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच. ये हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच है. ऐसे करके आपको आगे पैर बढ़ा के इसको या तो खींचिए या उसको आगे करिए. दिस इज ऑल्सो गिव यू द हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच. दिस इज योर क्वाड्रिसेप स्ट्रेच. ये क्वाड्रिसेप स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है. इस तरह से क्वाड्रिसेप आगे हैं तो ये क्वाड्रिसेप स्ट्रेच हो रहा है. लगे आपको जब खींचेंगे तो यहाँ पे कोई जोर पड़ रहा है क्योंकि क्वाड्रिसेप इज फाइनली इज इंसर्टेड ओवर द टिबियल ट्यूबरोसिटी, है ना. नी पे आके ये यहाँ पे टिबियल ट्यूबरोसिटी पे जाके अटैच करती है जाके इन फॉर्म द लिगामेंट, पटेलर टेंडन की शक्ल में. देन इज द काफ स्ट्रेच. ये काफ स्ट्रेच है. जैसे आपको बताया है, एक टांग को आप आगे फ्लेक्स करिए और दूसरी को आप स्ट्रेच करिए. दिस इज योर काफ स्ट्रेच. द नेक्स्ट इज इन कैटेगरी इज द रूमेटॉइड आर्थराइटिस. रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ए प्रोग्रेसिव डिसेबलिंग क्रॉनिक मल्टी सिस्टम डिजीज. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ये? इट इज़ ए मल्टी सिस्टम है. ये दिल को भी इफेक्ट करती है ना, लंग्स को भी करती है, सारे सिस्टम को करती है, मस्कुलर सिस्टम को करती है. उसके साथ में ये वाइटल्स ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करती है. सो एंड कैरेक्टराइज बाय पेन, स्वेलिंग एंड स्टिफनेस ऑफ द साइनोवियल जॉइंट ऑफ द हैंड, फीट एंड रिस्ट. स्मॉल जॉइंट्स पे जिसका रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट ज़्यादा करती है. स्मॉल जॉइंट्स, ये स्मॉल जॉइंट्स हैं, ठीक है, हैंड एंड फीट के. दीज आर द स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द बॉडी. ऑफन वर्स इन द मॉर्निंग एंड आफ्टर पीरियड ऑफ द इनएक्टिविटी. जब आप आराम करके उठेंगे तब इसका उरूज पे होती है ये, ठीक है, सुबह में आप उठेंगे ना. फ्लेक्सन टेंडन्स टीनोसाइनोवाइटिस ए फ्रिक्वेंट हॉलमार्क ऑफ द रूमेटॉइड आर्थराइटिस. फ्लेक्सन टेंडन, ये इतने सर्फ टेंडन जो हैं, दे ऑल आर द फ्लेक्सर टेंडन्स. जो आगे की तरफ एंटीरियर एस्पेक्ट में, फ्लेक्सर एस्पेक्ट में, दे ऑल आर द फ्लेक्सर टेंडन्स. सो फ्लेक्सर टेंडन टीनोसाइनोवाइटिस टेंडन्स हैं, बेसिकली दे आर रनिंग विद इन द साइनोवियल शीथ. उसकी एक कवरिंग है. क्या है उसकी? ऐसे रफनेस नहीं है, उसकी कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है. उसका इन्फ्लेमेशन होता है तो एनी इन्फ्लेमेशन गिव राइज टू द फ्लूइड. जब फ्लूइड होता है तो इसमें उसका जो नॉर्मल फ्लो, जो टेंडन का मूवमेंट है वो कॉम्प्रोमाइज होता है. स्टिफनेस आती है, फ्री मूवमेंट उसका ख़त्म हो जाता है. सो दिस फ्लेक्सर टेंडन टीनोसाइनोवाइटिस इज ए फ्रिक्वेंट हॉलमार्क ऑफ द रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड लीड टू डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन, रिड्यूस ग्रिप स्ट्रेंथ एंड ट्रिगर फिंगर्स, है ना. ट्रिगर फिंगर्स हम आगे दिखाएंगे आपको. नाउ दिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस exhibits symmetrical, destructive and deforming polyarthritis. इंपॉर्टेंट क्या है? सिमेट्रिकल होती है, दोनों तरफ होगी.
बाइलेटरल होगी, सिमेट्रिकल होगी, एक तरफ नहीं होगी। डिस्ट्रक्टिव होती है, इरोड करती है, ये जॉइंट को, जॉइंट सर्फेसेस को इरोड करती है, स्ट्रक्चर्स को इरोड करती है। एंड डिफॉर्मिंग पॉलीआर्थराइटिस, जब स्ट्रक्चर जॉइंट स्पेस जो होते हैं आर्टिकुलर सर्फेस जब इरोड हो जाती हैं, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो ये क्या होता है, फिर डिफॉर्मिटी देना शुरू कर देती हैं। स्मॉल एंड लार्ज अनइवल जॉइंट विद एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन, इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा आर्टिकुलर, मानी कि जॉइंट के बाहर के उनके मैनिफेस्टेशन, इसके साथ साथ और क्या होते हैं, पेशेंट फैटिक होगा, हमेशा वो थका हुआ होगा, उसके सबकुटेनियस नोड्यूल्स मिलेंगे, उसकी खाल के नीचे छोटे छोटे नोड्यूल्स मिलेंगे, लंग इन्वॉल्वमेंट होगा, पेरिकार्डाइटिस होगी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी, वेस्कुलाइटिस होगी, है ना, ये मतलब वेसल्स इन्वॉल्व हो जाएंगी। एंड हेमेटोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़, हेमेटोलॉजिकल होता है जितने रूमेटॉइड पेशेंट होते हैं क्रॉनिक, डॉक्टर आयशा हमसे अच्छा बताएंगी, दे ऑल आर एनीमिक, दे ऑल आर अनीमिक होते हैं वो सारे, ठीक है। देन इट इज एसोसिएटेड विद सिस्टमिक डिस्टर्बेंसेज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सर्कुलेटिंग एंटीग्लोबिन एंटीबॉडीज। ऑटोम्यून हमने आपको बताया था, दिस कम इन ए कैटेगरी ऑफ द ऑटोम्यून डिजीजेज एंड इट इज एसोसिएटेड विद द सिस्टमिक डिस्टर्बेंसेज एंड प्रेजेंस ऑफ द सर्कुलेटिंग एंटीग्लोबिन एंटीबॉडीज़। इसके स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो हम लोग कराते हैं, रूमेटॉइड फैक्टर होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन कराते हैं हम लोग, है ना, ACPA कराते हैं हम लोग उसमें। तो ये स्पेसिफिक टेस्ट हैं जो हम लोग इसमें कराते हैं। इट अकर्स मोर कॉमनली इन फीमेल्स देन इन मेल विद ए रेशियो ऑफ 3:1। ओके, इट इज़ मोर कॉमन इन फीमेल। जेनेटिकल प्रोडिस्ट्रीब्यूशन है उसका, क्यों होता है, बस जेनेटिकल उसका वजह से। दिस इज द फिगर विच शोज द रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्मॉल जॉइंट्स, इरोजन है, डिस्ट्रक्शन है, डिफॉर्मिटी है, ये सब है इसका, है ना, ये सारा इसका पिक्चर है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। नाउ नेक्स्ट कम द, इसकी मेडिसिन्स होती हैं, है ना, मेडिसिन से आप लोगों को मतलब नहीं है वैसे, है ना, स्पेसिफिक मेडिसिन्स होती हैं। देन इज द एक्सरसाइजेज, एक्सरसाइजेज में जेंटल रेंज ऑफ मोशन, रिस्ट सर्किल, रिस्ट सर्किल कैसे बनाते हैं, रिस्ट सर्किल बनाने का, फिस्ट को बना के इसको आप एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज आपको रिस्ट को चलाना है, दिस इज योर रिस्ट सर्किल। देन इज फिंगर स्ट्रेच, फिंगर्स को एबडक्शन एडक्शन, एबडक्शन एडक्शन, एबडक्शन एडक्शन, ये फिंगर्स स्ट्रेचेज हैं आपके। स्ट्रेचेज में आपको एडक्शन ऐसे नहीं करना है, आपको पूरा एक्सटेंशन करना है, फुल एक्सटेंशन, फुल एक्सटेंशन के साथ एबडक्शन एडक्शन, एबडक्शन एडक्शन। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, लाइट रेजिस्टिव बैंड एक्सरसाइजेज, बैंड आपको यही चीज़ बैंड की शक्ल में करना है, आपको एडक्ट करना है, हमें रेजिस्टिव करना है, जिसके बीच में हम कोई सॉफ्ट चीज़ दे देंगे, 2 फिंगर के बीच में कहेंगे दबाओ, इसको दबाने के लिए कहेंगे, ये रेजिस्टिव हो, है ना, उसको थोड़ा प्रेशर लगाने के लिए, इसी को बैंड को हम जहाँ एक छोटा सा बैंड लगा दें, कहें फिंगर्स को चौड़ाओ, है ना, तो उसको ये क्या है सब रेजिस्टिव। 2 एक्सरसाइज, 2 फिंगर्स के यहाँ पे हमने एक, ठीक है, यहाँ पे हमने एक इलास्टिक बैंड दे दिया, रिस्ट को एक्सटेंशन को दिखाने के लिए हमने ऐसे ऐसे चौड़ा रहे हैं उसे, है ना, बहुत पावर कम हो जाती है। रोमेटिक पेशेंट, अगर एक्टिव रोमेटिक पेशेंट है, डॉक्टर साहब हमारी बताएंगे, कर ही नहीं पाता ये सब काम, ठीक है, नॉर्मली नहीं कर पाता, इसलिए बहुत ज़रूरी है। लो इम्पैक्ट एरोबिक्स, लो इम्पैक्ट एरोबिक्स, स्विमिंग एंड स्टेशनरी साइकिलिंग, मोबाइल साइकिलिंग नहीं कर पाए, गिर पड़ेगा, फ्रैक्चर्स हो जाएंगे। स्टैटिक साइकिलिंग, स्विमिंग, है ना, स्विमिंग भी असिस्टेड स्विमिंग, है ना, असिस्टेड स्विमिंग, क्योंकि लंग इन्वॉल्व रहता है, एक्टिव डिजीजेज में और एडवांस डिजीज में लंग भी इन्वॉल्व रहता है ना उसका। देन द जॉइंट प्रोटेक्शन टेक्निक्स, अवॉइड हाई इम्पैक्ट मूवमेंट्स, तेज भागना, दौड़ना, कूदना, जंपिंग, ये सब अवॉइडेड है उसमें, है ना, हाई इम्पैक्ट में। देन so this physiotherapy mainly consists for rheumatoid patient consists of sprintage of the joints in proper position during the acute phase। जो टेढ़े मेढ़े हाथ पैर हो रहे हैं उसमें कुछ सपोर्ट दे दी जाती है, स्प्रिंटेज दिया जाती है जिससे कि ज़्यादा टेढ़े मेढ़े ना हो, उसको एक नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में लाने की, फंक्शनल पोजीशन में लाने की कोशिश करते हैं, नॉट एनाटॉमिकल बट फंक्शनल पोजीशन में। एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड कोल्ड कैन रिलीव पेन और स्टिफनेस, जॉइंट मोबिलाइजिंग एक्सरसाइजेज टू मेंटेन जॉइंट फंक्शंस एंड मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज टू गेन स्ट्रेंथ। ये बेसिकली मोटा मोटा उसका फिजियोथेरेपी में रूमेटॉइड के पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं। देन इज द रोटेटर कफ इंजरीज और डिसऑर्डर्स,
ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, फिजिकल हेल्थ वालों के लिए। रोटेटर कफ पहले तो पता होनी चाहिए, इट इज बेसिकली इट इज़ ए कंपोजिट, है ना, और 4 मसल टुगेदर फॉर्म है रोटेटर कफ। 4 मसल ऑफ द शोल्डर जॉइंट इज बेसिकली सुप्रास्पाइनेटस, स्पाइन होता है, शोल्डर ब्लेड होता है, उसके पीछे का डॉर्सल सरफेस कहलाती है, उसके ऊपर मसल होती है सुप्रास्पाइनेटस, उसके एक नीचे होती है स्पाइन के नीचे इंफ्रास्पाइनेटस, फिर एक पीछे की तरफ होती है जो कॉस्टल सरफेस पे होती है उसके, जो छाती पे आके लग रहा है, सब स्कैपुलरिस, एंड द फोर्थ मसल इज टेरिस माइनर। ऑल दीज मसल्स दे गोज एंड अटैच, दे टेक ओरिजिन फ्रॉम द स्कैपुला एंड गोज टू अटैच ओवर द अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस। अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस पे जाके ये, है ना, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी पे और एक उसके बाइसेप्टल ग्रुप के एक बॉर्डर पे जाके ये अटैच हो जाती हैं। एंड दीज 4 मसल दे फॉर्म द रोटेटर कफ, and this rotator cuff is meant for stability of the shoulder joint. It is meant for stability of the shoulder joint. So this, if there is an irritation of the or damage to the tendons around the shoulder of rotator cuff, and these disorder includes inflammation, calcium buildup or calcium tendinitis, calcium deposition and tears of the tendons. Now another rotator cuff disorder, inflammation of the protective bursa in a shoulder joint, is also included in the same category. So rotator cuff disorders caused by age related changes, degeneration are often associated with rubbing of the tendon on the bone. When there is a rubbing of the tendon over the bone, this is known as the impingement syndrome. Is known as impingement syndrome. So what are the causes for this? When the subacromial space, एक उसी की स्कैपुला शोल्डर ब्लेड की आगे प्रोजेक्शन होता है एंटीरियरली, जो अगर रूफ ऑफ द शोल्डर जॉइंट बनाता है उसको सब एक्रोमियम कहते हैं। उसी के नीचे अगर होगा स्पेस को, सब एक्रोमियल स्पेस बिकम स्मॉलर ड्यू टू इन्फ्लेमेशन और बोन स्पर और फ्लूइड बिल्डअप, द रोटेटर कफ टेंडन्स में बी स्क्वीज्ड एंड रब अगेंस्ट द बोन, है ना, ये इसका कॉज होता है। रब क्यों होते हैं? इसलिए रब करता है, जो नॉर्मली जो उसमें बर्सा है, सब एक्रोमियल बर्सा है, वो भी इन्फ्लेम्ड है, उसने इन्फ्लेमेशन हुआ, फाइब्रोसिस हुआ, वो कम हो गया। Now, so this is again the causes में again is overuse, either overuse or trauma or tendon degeneration. Now, what are the exercises for this rotator cuff injuries? Is pendulum swings, range of movement. Pendulum swing हमने आपको बताया है ना। pendulum swing का मतलब आपको आगे पीछे नहीं करना है, साइड साइड नहीं करना है, आपको रोटेट करना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसको ऐसे करके पेंडुलम की तरह उसको आपको, ये आपको स्टेबलिटी जो स्टिफनेस को कम करता है, रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ाता है जो कि, ठीक है। देन आइसोमेट्रिक शोल्डर एक्सरसाइज, बॉल पुशअप, ऐसा ये करके आप बॉल पुशअप कर रहे हैं, ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज है, ठीक है। देन स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज, एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन विद रेजिस्टेंट बैंड, एक बैंड ले लिया, फंसा लिया यहाँ पे हमने अपने फुट पे, उस बैंड को, रबर बैंड का इलास्टिक बैंड को यूँ ले जा रहे हैं हम, बाहर ले जा रहे हैं, अंदर ला रहे हैं, ये एक्सटेंशन में है। हम इसे फ्लैक्शन में भी कर सकते हैं, इसको फ्लेक्शन में भी ऐसे कर सकते हैं रोटेशन, ये फ्लेक्शन में, फ्लेक्शन एट द एल्बो, ऐसा भी कर सकते हैं हम बैंड को, ये हाथ में पकड़ना है, ये एक्सटेंशन में जो हमने आपको बताया, दिस इज इन एक्सटेंशन, फुल एक्सटेंशन, ठीक है, ये पूरा ले जा रहा है, ठीक है। सो द एंड द पोस्चरल एक्सरसाइजेज, स्कैपुला जो है उसका रिट्रैक्शन, ऐसे रिट्रैक्ट किया, छोड़ा, रिट्रैक्ट किया पीछे की तरफ, बीच में सेंटर ऑफ द बैक में आपको उसको उसकी तरफ ले जाना है, ठीक है। तो दीज आर द एक्सरसाइजेज फॉर द रोटेटर कफ। इमरान पंखा चलाओ यार, गर्मी लगने लगी। तो ये these are the again there are the different exercises and the what are the prevention you are supposed to take for the this to avoid the rotator cuff injuries. Long term changes that occurs in around the shoulder joint as a result of everyday wear and tear cannot be totally prevented, but you may able to prevent some rotator cuff disorders by keeping the muscle in your shoulder flexible and strong. Daily exercises to maintain flexibility may be the best defense against the rotator cuff disorders, right? Maintaining good posture at all time, stand straight and relax and without slumping. Slumping क्या होता है? टेढ़े मेढ़े, ये slumping है ना? स्ट्रेट खड़े हुए, सीधे खड़े होइए, बिल्कुल। Then no lifting object, not lifting object that are too heavy for you, है ना, जो अपने से ज़्यादा, है ना, उससे ज़्यादा, अपनी ताकत से ज़्यादा नहीं उठाना है। Not catching falling objects. Avoiding sports or other activity where the forceful contact of fall are likely common.
शोल्डर के बल आके गिरते हैं ना, आपने कोई चीज़ किया, शोल्डर के आगे इम्पैक्ट किया. नॉट कीपिंग योर आर्म्स आउट टू द साइड और रेज ओवर योर हेड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सच एज व्हेन पेंटिंग ए सीलिंग, है ना. ओवरहेड एबडक्शन, ये वाला एक्शन नहीं करना है, ओवरहेड. और हम लोगों ने भी देखा जब हम लोग जैसे करके सो जाते हैं बहुत देर तक तो दर्द महसूस होने लगता है ना, वो भी ओवरहेड एबडक्शन है ना, ओवरहेड एबडक्शन है कि पर्टिकुलर पोजीशन में रख लें तो. द नेक्स्ट इज lateral epicondylitis, which is also known as the tennis elbow. And although the majority of the people with lateral epicondylitis have never played tennis, मतलब जरूरी नहीं है जो टेनिस खेलता है उसी में हो. So the condition can cause pain on the outside portion of the elbow over a bony prominence termed as the lateral epicondyle. ये आप लोग फील कर सकते हैं, फ्लेक्स करिए और टू कंडाइल्स को आप लोग फील कर सकते हैं अपने पीछे. जो है वो ओलिकोरोनल प्रोसेस है, वो अलग चीज़ है. नाउ प्रोमिनेंस पेन अकर्स विद एक्टिविटीज सच एज ग्रास्पिंग, पुशिंग, पुलिंग एंड लिफ्टिंग. कोई चीज़ उठा रहे हैं, लेडीज़ जनरली बहुत कॉमन है, उठाती हैं, हांडी चलाती हैं तो दर्द होता है उन्हें, है ना. स्क्वीज़ करती हैं, कपड़ों का पानी निकालती हैं तो होता है, या कोई ब्रोमिंग करती हैं, कोई चीज़ करती हैं तो उसमें सब लेटरल एपिकंडाइल, लेटरल एक्सटेंसस मसल्स का यूज़ है उसमें. दिस कॉजेज द पेन ओवर द लेटरल एपिकंडाइल. As the process progress, the pain may occur with limited activity or even at rest. So this is the basically इस पोजीशन में हमने दिखाया है ये lateral epicondyle है, ये थंब है lateral epicondyle. जब इसको हमने ऐसे कर दिया है तो ये बेसिकली इस पोजीशन में ये lateral condyle है. जब इसको हमने सुपाइन किया तो ये बेसिकली इसका ओरिजिन जो है तो कुछ ऐसे नज़र आ रहा है, तो ऑब्लिक. ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा. दिस इज, है ना, बेसिकली ये मीडियल दिखाया इन्होंने, गोल्फर एल्बो, ये लेटरल है इनका. सो द एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी दैट ओवर स्ट्रेच द इन्वॉल्व टेंडन नोन एज द एक्सटेंसर कार्पस रेडियलिस ब्रेविस कैन कॉज द डिसऑर्डर. मेन जो टेंडन है इस मसिल का है, एक्सटेंसर मसिल होती है यहाँ पर, एक्सटेंसर कार्पस रेडियलिस ब्रेविस मेन मसिल है, उसका इफेक्ट होता है ये कॉज. It is absent in few people, then maybe variation, maybe then sir मतलब क्या उसके side effects हो सकते हैं? Palmaris longus is basically has a long tender and later on when just passes behind to the palmar epineurosis, this flexor retinaculum is converted into the epineurosis, palmar epineurosis. वो यहाँ पर एक शीत होती है, प्रोटेक्टिव शीत होती है जो पाम को आपको ग्रिप में मदद करती है आपके, है ना. तो अगर एब्सेंट है उसमें, एबनॉर्मल है तो वो कोई गॉड ने उसको और कुछ अरेंज किया होगा उसको बचाने के लिए. बट इट इज़ ए बेसिकली मॉडिफिकेशन, पामर एपिनोसिस ए मॉडिफिकेशन ऑफ द टेंडन ऑफ द पामलिस लॉन्गस. सो द दिस tennis elbow causes repetitive wrist extension, overuse the forearm muscles. Exercises for this is wrist extensor stretch, है ना. एक्सटेंसर स्ट्रेच कैसे, रिस्ट एक्सटेंसर स्ट्रेच कैसे करेंगे, ये है ना, ये एक्सटेंसर है. ठीक है, रिस्ट एक्सटेंसिव रिस्ट एक्सटेंशन वेट विद वेट कैसे करेंगे. नहीं, उसमें आपको फोर आर्म को स्टेबल करना है आपको पूरा. बैठ गए हम, ये रेस्ट कर लिया, डंबल पकड़ लिया, अब ये उठा रहे हैं हम, ये ठीक है, ये उसका है, वो कहाँ नॉर्मल, ये नॉर्मल है आपका. ठीक है, और वो आपका एक्सटेंसिव रिस्ट एक्सटेंशन विद वेट. देन ग्रिप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, स्क्यूज बॉल को स्क्यूज करना. ठीक है, फोर आर्म प्रोनेशन सुपिनेशन विद डंबल, भारी वजन उठा लिया, उसको भी आपको स्टेबल करना है. ऐसा नहीं ऐसे करना शुरू कर दिया, नहीं, आपको एल्बो जॉइंट को स्टेबल करना है बॉडी के, फिर आपको प्रोनेशन सुपिनेशन करना है, ये ऐसे, तब इफेक्टिव होगा. समझे आप, आपको पहले यहाँ का इसको ये स्टेबल करना है, प्रॉक्सिमल जॉइंट को स्टेबल करना है टू मूव द डिस्टल जॉइंट. ये बहुत डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं. ठीक है, रिस्ट ऑफ रेंज ऑफ मोशन है, रिस्ट स्ट्रेच है, ये है ना, ये प्रोनेशन सुपिनेशन है ना. प्रोनेट देना, किसी चीज़ को देना, सुपिनेट मांगना, बैगिंग, है ना, दे दीजिए, और ये आपको देना. ठीक है, ये आपका स्क्वीज होगा, रिस्ट फ्लेक्शन, ये फ्लेक्शन एक्सरसाइज है, कोई चीज़ पकड़ ली, ये एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज है. एल्बो रेंज ऑफ मोशन है,
है ना, ये आपका डिफरेंट डेविएशन, अल्ला रेडियल डेविएशन है और स्क्वीजिंग। सर जिस टाइम ये वो यूज हो जाते हैं तो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है कि एक्सरसाइज करो, ये बस कौन कहते हैं? डॉक्टर से बोलते हैं। एक्यूट कंडीशन में डिपेंड करता है किस कंडीशन में है, इन्फ्लेम्ड है उसमें, है ना, एक्यूट कंडीशन तो पहले रेस्ट देना होता है हम लोगों को, पहले इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर फिर एक्सरसाइजेस कराते हैं। ठीक है, डॉक्टरों क्यों बदनाम कर रहे हो यार? हाँ ठीक है। नेक्स्ट इज द कार्पल टनल सिंड्रोम, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्पल टनल सिंड्रोम बेसिकली द कॉज इज मीडियन नर्व कंप्रेशन। नर्व्स होती हैं अपर लिम्ब में, 3 मेजर नर्व्स हैं, अल्लर नर्व, रेडियल नर्व और मीडियन नर्व, 3 मेजर नर्व्स हैं। ठीक है, तो ये मीडियन नर्व कंप्रेशन होता है, रिस्ट पे होता है। अभी हमने बताया था आपको, रेटिकुलम होते हैं, बैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फाइब्रस बैंड लाइक स्ट्रक्चर, जो इधर की तरफ होता है फ्लेक्सर एस्पेक्ट तो फ्लेक्सर रेटिकुलम कहते हैं, अगर इधर होता है तो एक्सटेंसर कहते हैं। मकसद इसका काम टू होल्ड द टेंडन इन प्लेस। क्या होता है मकसद? टेंडन्स को अपनी जगह पे उसको मेंटेन करके बांध के रखना। तो वहाँ पे उसी के बीच में से ये मीडियन नर्व जाती है, कार्पल टनल होती है, एक स्पेस होता है बोन्स के बीच में, स्मॉल स्मॉल बोन्स होती हैं, उसमें वहाँ इसका कंप्रेशन होता है। जब कंप्रेशन होता है तो दिस गिव्स इज नोन एज द कार्पल टनल सिंड्रोम, है ना। नाउ एक्सरसाइजेस फॉर दिस इज रिस्ट फ्लेक्सर एंड एक्सटेंशन स्ट्रेचेस, जो अभी पहले बताई थी, ऐसे करके और ऐसे करके। मीडियन नर्व ग्लाइड्स, मीडियन नर्व ग्लाइड्स, ग्लाइड्स मतलब मीडियन नर्व को आपको ग्लाइड कराना है, चलवाना है, आगे पीछे ऊपर नीचे चलवाना है। उसके दो ही रिलेशन है, एक स्ट्रक्चर है फाइब्रस स्ट्रक्चर, या तो वो इधर चलेगी, इधर चलेगी, ऊपर चलेगी या नीचे चलेगी, थोड़ा सा मूव करेगी अपनी जगह से हल्के हल्के, उसको ग्लाइडिंग कहते हैं। ग्लाइडिंग में भी यही मूवमेंट कराते हैं, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन। उसके बाद जैसे ये है जैसे, ठीक है, ये कराया आपने, ये कराया आपने, उसके बाद आपने थंब को एक्सटेंड कराया, ये भी ग्लाइड करा रहा है, थंब को एक्सटेंड कराया, फिर आपको फिंगर्स को और करके फिर एक्सटेंड कराया, फिर आपने हाथ को ऐसा मोड़ा, ये सब ग्लाइडिंग करा रहा है। ये अपना हमारी तरफ हो गया, दिस इज द वन वे। और इतना रखना है इसको, हाथ को कितना रखना है? अबाउट 20-30 डिग्री। फिर हमने इसको 90 डिग्री करके दोबारा ले गए। अब इसको पाम की डायरेक्शन, इट शुड फेसेस टुवर्ड मी, टुवर्ड माई फेस। ठीक है, इसको फिर वहाँ पे हमने कराया 90 डिग्री से ऊपर ले जा रहे हैं, एक्सटेंशन करके देखो तो ग्लाइड हो रहा है वहाँ पे, एक्सटेंशन एक्सटेंशन है ना, इन्फ्लेक्शन एक्सटेंशन। ठीक है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रहा है ना, ये उसका मूवमेंट हो रहा है पूरा, है ना। तो ये दीज ऑल आर। फिर उसको आगे ले जाएं, आगे ले जाके इसको ऐसे कराएं, ये भी ग्लाइडिंग है, फुल मूवमेंट, क्योंकि मीडियन नर्व निकल के वहीं से आ रही है, फुल ग्लाइडिंग हो रहा है उसका, फुल ग्लाइडिंग, एक्सटेंशन, रोटेशन, प्रोनेशन, सुपिनेशन भी करा सकते हैं उसका हम। सो दीज आर द डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ ग्लाइडिंग द मीडियन नर्व। फिंगर एंड रिस्ट स्ट्रेंथनिंग विद रेजिस्टेंट बैंड्स, ये हमने बताया था अभी, रेजिस्टेंट बैंड्स है ना। फिंगर्स का, फिंगर एंड रिस्ट का स्ट्रेंथनिंग विद रेजिस्टेंट बैंड, एक बैंड लगा लिया, एक बैंड इलास्टिक बैंड, उसको खींचना है ऐसे, है ना, खींचना है उसको, फिर अब नॉर्मल जगह पे ले आए, फिर खींचा, फिर ले आए, फिर खींचा, इसी तरह से फिंगर्स में यहाँ पे फंसा लिया, फिंगर को चौड़ाया, खोला, चौड़ाया, खोला। पोस्चरल करेक्शन एक्सरसाइजेस, और उसका हाथ को पोजीशन को सही रखना है, जब कंप्यूटर पर काम करें, टाइप करें तो पोस्चर अपनी सही रखना है, लेवल सही रखना है कंप्यूटर का। द नेक्स्ट इज द लंबर रेडिकुलोपैथी, शियाटिका, है ना। नेक्स्ट इज शियाटिका। Now sciatica is basically the compression of the nerves which are coming from the lumbar area, lumbosacral area, and this is because of the compression is either because of the herniated disc और पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम। एक मसल होती है पायरिफॉर्मिस, उसके नीचे से पास होती है sciatic nerve। कहाँ से पास होती है? उसके नीचे से पास होती है। So this is now exercises for this is nerve gliding again, sciatic nerve mobilization, इसके हिप जॉइंट के एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन और इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन हम कराएंगे। एंड देन द पायरिफॉर्मिस स्ट्रेच, दीज आर द एक्सरसाइजेज फॉर द पायरिफॉर्मिस। दिस इज द मेन एक्सरसाइज फॉर द पायरिफॉर्मिस स्ट्रेच। यू सपोज टू लाई डाउन ऑन योर बैक, कीप द वन लिम्ब स्ट्रेट, do the other limb in flexion and hold with the opposite hand to as much as you can bend towards your opposite side. This is one of the most important muscle, the exercise for the pyriformis stretch. ये pyriformis stretch के लिए। And again other strengthening exercises and pyriformis syndrome pain के लिए हैं। This is the known as the bird dog pose. Bird dog pose मतलब अपोजिट साइड का लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब अपोजिट साइड की एक्सटेंड होंगी,
अपोजिट साइड की, एक तरफ की नहीं है। इस पे है ये, हम क्या करेंगे, है ना, इसको बेंड करके यहाँ पे इस हाथ से ये अपोजिट साइड को रेस्ट करेंगे। दिस इज नोन एज बर्ड डॉग पोस्चर। ठीक है, ये एक्सरसाइज है एक। दिस इज ऑलरेडी लुंज भी बोलता है, कोई लंग बोलता है, कोई लुंज बोलता है, इसको जो चाहे बोल लो, बट स्पेलिंग रिमेन द सेम, LUNG। ठीक है, एंड दिस इज द लेग रेजिंग एक्सरसाइजेज एंड दिस इज कॉल्ड एज द ब्रिजिंग। ये ब्रिजिंग करेंगे। ठीक है, कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस, बर्ड डॉग्स वाला और डेड बग्स वाला। डेड बग्स में और नीचे ऐसे करके चले जाते हैं डेड बग्स की तरह। हैमस्ट्रिंग एंड हिप फ्लेक्सर स्ट्रेचेस, ये क्या है, ये हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, ये सब इसके लिए करेंगे। देन इज द प्लांटर फेशियाइटिस। प्लांटर फेशियाइटिस इज अगेन, जैसे पामर फेशिया होता है इसी तरह से प्लांटर फेशिया होती है। पैर में नीचे जो स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करती है, आपके वेट से आर्चेज होती हैं वहां पे, उसका इन्फ्लेमेशन हो जाएगा फेशिया का, नोन एज द प्लांटर फेशियाइटिस। अगेन कॉजेज आर ओवर यूज, पुअर आर्च सपोर्ट, फ्लैट फुट जिनके होते हैं, या आज लो आर्च होती हैं फुट की, टाइट काफ मसल्स, ये उसके कॉजेज हैं। एक्सरसाइजेज काफ स्ट्रेचेज, स्टैंडिंग वॉल स्ट्रेच, है ना। स्टैंडिंग वॉल स्ट्रेच में आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस पर खड़े होकर ये वाला भी वॉल स्ट्रेच, और आप इसके बैक से भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। प्लांटर फेशिया स्ट्रेच, रोलिंग फुट ऑन ए वॉल। एक बॉल डाल दिए नीचे, उसको ऐसे ऐसे इसके पैर से आगे पीछे, अगर इधर आगे पीछे अपना मसाज भी हो रहा है उसको, स्टैंडिंग एक्सरसाइजेज भी हो रहा है होल्ड करने के लिए। ठीक है, टो कर्ल्स एंड फुट स्ट्रेंथनिंग। टो कर्ल्स में क्या है, एक छोटा सी कोई चीज़ डाल दीजिए और उसे टो से पकड़ना है, बार बार ऐसे पकड़ने की कोशिश करना है, बार बार टो फुट। ये एक्सरसाइजेज स्मॉल मसल ऑफ द फुट की एक्सरसाइजेज भी हो रही हैं और आपका कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव कर रहा है। देन एंकल मोबिलिटी एक्सरसाइजेज, एंकल मोबिलिटी एक्सरसाइजेज। एंकल मोबिलिटी में बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, हम आपको दिखाते हैं। एंकल मोबिलिटी में वही है, डॉर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन है, एबडक्शन एडक्शन करेंगे, रोज को सर्किल मूवमेंट्स में एंकल को करेंगे। फिर आपको टोस पे खड़े होना है, हील पे खड़े होना है, ये भी एंकल एक्सरसाइजेज हैं। सेमी स्क्वाट करके आप इस पर, ये भी एंकल एक्सरसाइजेज है। आप स्क्वाट से खड़े होकर जब बैठते हैं उसके बाद आगे झुक के ऐसे करिए, ये भी एंकल एक्सरसाइजेज है आपकी, सारी एंकल एक्सरसाइजेज हैं। कहाँ पे आ गए, वो हो गई। नेक्स्ट कंडीशन इज फ्रोजन शोल्डर, एडेसिव कैप्सुलाइटिस। दिस इज ऑल्सो, वो एक रोटेटर कफ इंजरी अलग थी, एडेसिव कैप्सुलाइटिस अलग चीज़ है। एडेसिव कैप्सुलाइटिस करेक्टराइज्ड बाय द पेन एंड रेस्ट्रिक्टिव मूवमेंट बोथ एक्टिव एंड पैसिव द शोल्डर फॉर, है ना, एंड फॉर अब यू डू द एक्सरे फॉर दिस एक्सरे इज नॉर्मल। अगर एडेसिव कैप्सुलाइटिस के लिए अगर आप एक्सरे करेंगे तो एक्सरे नॉर्मल होगा, एंड इज ऑल्सो नोन एज द फ्रोजन शोल्डर। नाउ causes is joint capsule tightness or inflammation. Now treatment of the adhesive capsulitis require a multifaceted and individualized approach. A step-wise approach shall be adopted in which the physician shall begin with non-invasive treatments. पहले हम लोग non-invasive करते हैं, दवाएं देंगे, कुछ एक्सरसाइजेज बताएंगे, ये non-invasive treatment है। अगर उससे सही नहीं होता है तो हम लोग इन्वेजिव करते हैं, इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन डालते हैं। उससे भी ठीक नहीं होता है तो फिर हम लोग एनेस्थीसिया में उसको ब्रेक करते हैं, एडिशंस जो हो गए हैं उसको हम लोग ब्रेक करते हैं। दे ऑल आर नोन एज द इन्वेजिव प्रोसीजर्स। एक्सरसाइजेज इसके लिए अगेन पेंडुलम एक्सरसाइजेज, वॉल वॉक, वॉल और वॉल क्रॉलिंग एक्सरसाइज। ये ऐसे दूर खड़े हो जाएंगे एक्सटेंशन में हाथ लेके और इसको वॉल को क्रॉल करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे जब तक कि टमी आपकी वॉल से टच ना हो जाए। फिर उसी तरह से एक्सटेंशन पीछे पीछे से वापस आएंगे। दिस इज नोन एज द वॉल क्रॉलिंग एक्सरसाइजेज। और फिंगर क्लाइंबिंग अप द वॉल। पैसिव एक्सटर्नल रोटेशन विद ए स्टिक, वो कैसे करेंगे, लंबी सी स्टिक पकड़ ली, एक्सटेंशन करेंगे, उसे ज़मीन पे उसे खिसकाएंगे, ऐसे आपको अंदाज़ा होगा ना ज़मीन पे स्टिक टच हो रही है, तो ये एक्सटर्नल रोटेशन पैसिव इन फुल एक्सटेंशन। देन द शोल्डर स्ट्रेचेज विद एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेज। शोल्डर स्ट्रेचेज एक्सरसाइजेज है, आप कोई चीज़ बांध दें इधर, उसको एक रबर बैंड, उसको आप खींचें, पहले आप अंदर की तरफ करें, जो इंटरनल मूवमेंट होगा, एडक्शन होगा, बाहर की तरफ करेंगे उसको होगा, ऊपर की तरफ आगे पीछे करके आप ये करें,
है ना, शोल्डर एक्सटेंशन, फुल एक्सटेंशन में आप किसी चीज़ को रोटेट करें, कोई व्हील है, कोई चेयर है, कोई चीज़ उसको रोटेट करें. Next is the cervical spondylosis. It is again a small common progressive degenerative disorder of the human spine, often caused by the natural aging. Is it osteoarthritis की जैसे osteoarthritis था उसी तरह का this is also one of the osteoarthritis, but it is of the cervical area. It is defined as the vertebral osteophytosis secondary to the degenerative disc diseases. Now postural deviation, restricted movement in the affected joint, muscle issue and neck pain characterize cervical spondylosis. Now posture is important when experiencing neck pain. For some example of the good and bad sitting and lying postures are given in this figure. This is the bad posture, this is the right posture, this is again the bad posture, that one is the right posture. To avoid the cervical spondylosis. Lying down में ये भी बिल्कुल कुछ नहीं लगाना, ये भी नहीं सही है. स्मॉल थोड़ा सा तकिया लगाना, ये रोल पीछे करके गर्दन के, दिस इज द गुड वन. साइड से अगर आपको लेटना है तो बिल्कुल कुछ ना लगाना, ये भी खतरनाक है, गलत है. आप यू कीप द सम सॉफ्ट एंड थिन वन द साइड ऑफ योर हेड, ऑन द बिलो टू द योर हेड. एक्सरसाइजेज आर रोटेशन, नेक रोटेशन. सिट ऑन ए चेयर and or edge of the bed, gently turn your head to the look over your shoulder. अपने आप कंधे की तरफ देखिए. Hold for 5 to 10 seconds. Turn your head back to the middle and then turn to the look over another shoulder. है ना, जैसे सलाम फेरते हैं हम लोग, है ना, the same position and hold for 10 seconds repetition. This is known as the neck rotation exercises. Then the lateral side flexion exercises. अपोजिट सेम टाइप, अगर सपोज लेफ्ट साइड हम बेंड कर रहे हैं तो उसे लेफ्ट हैंड से ही उसको पकड़ के उसको हल्का सा होल्ड करके स्टिक करना है, उसको स्टेबल करना है. एंड दिस इज द लेटरल साइड फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस. फील ए स्ट्रेच ऑन द अपोजिट साइड. जब हम एक इधर करेंगे तो इधर हमें स्ट्रेच फील होगा, अपोजिट साइड में उसका स्ट्रेच फील होगा. फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस पैसिव है, ये ऐसे वो नीचे करा ऊपर करा. फिर रेजिस्टिव भी होती हैं, आप रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस करते हैं, आपको आगे रोकना है, आपको फिर फ्लेक्स करने की कोशिश करना है, दैट इज नोन एज रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस. चिन रिट्रैक्शन, चिन रिट्रैक्शन एक्सरसाइजेस, दिस इज फॉर द एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस. चिन रिट्रैक्ट करो आप, देखो फिर पीछे देखो, इस पर पीछे एक्सटेंशन में आपको चिन करना है, कंधे नहीं, चिन को, ये ठुड्डी को. हाँ देखो लगा पीछे कुछ हो रहा है. जब चिन रिट्रैक्शन करोगे तो एक्सटेंशन में उसको एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज होंगी नेक की. ठीक है. सिट ऑन ए चेयर ऑन और एज ऑफ द बेड. अगेन पुल योर चिन इन टूवर्ड यू एंड कीपिंग योर नेक एंड बैक स्ट्रेट, मेक ए डबल चिन. होल्ड द एंड पोजिशन एंड फील ए गुड स्ट्रेच इन योर बैक एंड योर नेक फॉर, है ना, आपको स्ट्रेच फील होगा. देन इज स्कैपुला सेटिंग, है ना, पीछे की तरफ ले जाने वाला स्कैपुलर एक्सरसाइजेस थी. स्कैपुलर एक्सरसाइजेज ये है, पीछे की तरफ आप नीचे की तरफ दबाएं उसे. सो दिस इज द स्कैपुला सेटिंग, यानी शोल्डर को उसको रोल बैक करना है पीछे की तरफ. दिस इज स्केलिन स्ट्रेच. स्केलिन मसल्स होती हैं, 3 स्केलिन मसल्स होती हैं, उसका स्ट्रेच है ये. इसमें आपको सपोज करिए ये आपका लेफ्ट हैंड है, दिस इज योर लेफ्ट शोल्डर. आपको राइट शोल्डर पर रखना है इसको. ठीक है, राइट पे रख लिया आपने. एंड राइट शोल्डर, मेक श्योर द शोल्डर इज केप्ट स्टिल, है ना, उसको मूवमेंट नहीं हो रहा. स्लोली रोटेट योर हेड टू द लेफ्ट. अब आपको सर को इधर धीरे धीरे झुकाना है. ठीक है, लेफ्ट की तरफ. योर राइट ईयर नियर योर राइट शोल्डर टू फील मोर ऑफ ए स्ट्रेच. अब जब आप उधर करेंगे तो आपको इधर की तरफ राइट साइड में स्ट्रेच फील होगा. दिस इज द स्केलिन स्ट्रेच. देन इज द पेक्टोरलिस स्ट्रेच. पेक्टोरलिस मसल है आगे की फ्रंट की थोड़े से ब्रेस्ट, इज ऑल्सो नोन एज द मसल ऑफ द ब्रेस्ट. ये पेक्टोरलिस स्ट्रेच के लिए है, सभी लोग आप लोग करते हैं जनरली खेलने से पहले. देन इज द लंबर स्पॉन्डिलोसिस और लो बैक पेन. दिस इज ऑल्सो जस्ट लाइक ए सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, इट इज ऑल्सो डिजेनरेटिव डिजीज. सिम्टम्स इसकी उसी तरह से होते हैं.
है ना। मैनिफेस्ट सिम्पटम कंस्टिट्यूटिंग इंडिविजुअल ऑनसेट ऑफ रिकरेंट एक्सियल लो बैक पेन। एक्सियल मीन्स बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बैक के बिल्कुल सेंटर में बैक पेन होता है। दैट इंक्रीजेज विद एक्टिविटी एंड एक्सलरेटेड बाय द लंबर हाइपर एक्सटेंशन। ये नॉर्मल जो होता है ये लंबर एक्सटेंशन इससे बढ़ता है। ये इंक्रीज लंबर लॉर्डोसिस, टाइट हैमस्ट्रिंग। लंबर लॉर्डोसिस क्या है? जो उसका कर्व जो है एंटीरियर आगे की तरफ बढ़ेगा, है ना टमी बढ़ती है, प्रेगनेंसी में बढ़ता है ना। जब कोई बहुत ज़्यादा टमी होता है उसमें सब लंबर लॉर्डोसिस बढ़ जाती है। इसलिए प्रेग्नेंट फीमेल्स में लो बैक एक बहुत कॉमन है, कॉमन उसकी कंप्लेन है फीमेल की। ए पॉजिटिव स्टोक टेस्ट सिंगल लेग हाइपर एक्सटेंशन एंड रोटेशन ऑफ द स्पाइन विच रिप्रोड्यूस द पेशेंट पेन। इसमें स्टोक टेस्ट कहलाता है ये। एंड देयर इज नो कैरेक्टरिस्टिक रेडिकुलोपैथी, या रिफर्ड पेन नहीं होता इसमें। नॉर्मल लंबर स्पॉन्डिलोसिस में रिफर्ड पेन जनरली नहीं होता है, डिस्क प्रोलैप्स में होता है। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ गायब हो गई यार, ये लैपटॉप में तुम्हारे में ये अलग अलग चल रहा है क्या दो तरफ? हैं इमरान? हाँ, ये एक्सरसाइजेज हैं इसके लिए। पेल्विक टिल्ट है ना, नी चेस्ट एक्सरसाइजेज हैं ये, है ना। दिस डायग्राम शोज, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, करते ही हैं आप लोग सब फिजिकल हेल्थ वाले। दिस इज कैट काउ posture of the low. This is also for the stretches for the prescribed for the low back pain, and this is the hamstring stretch. This is also prescribed for the low back pain. ये दोनों ऊपर वाली समझ में आ रही है? Now the bridging also prescribed for the low back pain. Besides these, the aerobic exercises and postural correction exercises. Postural correction में chin tucks and the scapular retraction exercises, they are the comes within the category of the postural correction exercises. So the causes for the low back pain are generally poor posture and muscle strain normally, but low back pain may occur due to herniated disc or spinal stenosis. इनके साथ साथ लो बैक पेन के साथ साथ रिफर्ड पेन भी होता है, नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, इन दोनों के साथ। द नेक्स्ट इज एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये भी एक तरह की ऑटोइम्यून डिजीज है, जिस तरह के रूमेटॉइड आर्थराइटिस थी। एंड इसमें जो होता है बैक पेन जो होता है लंबर लॉर्डोसिस में होता है, जैसे लंबर स्पॉन्डिलोसिस में होता है उसी तरह का होता है। और इसका जो एक फीचर होता है बम्बू स्पाइन कहलाता है इसका, है ना। बम्बू स्पाइन मतलब स्पाइन जो होता है बिल्कुल एंकाइलोज्ड हो जाता है, उसमें मूवमेंट थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, बहुत अच्छे खासे रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। एंड दिस ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स बिफोर द एज ऑफ 40 ग्रेजुअल एंड इंसिडियस होता है। सबसे ज़्यादा रोल इसमें जो होता है एक्सरसाइजेज का होता है। एंड लैक ऑफ इंप्रूवमेंट विद रेस्ट एंड नॉक्टर्नल पेन विद इंप्रूवमेंट यूजिंग अपॉन एराइजिंग। एक्सरसाइजेज का बहुत बड़ा रोल होता है। स्पाइनल स्टिफनेस, लिमिटेड मोबिलिटी एंड पोस्चरल चेंजेस, पर्टिकुलरली हाइपरकाइफोसिस। इफ यू डू द इन्वेस्टिगेशन देयर इज एसोसिएशन ऑफ द HLA-B27, है ना। ना एलिवेटेड लेवल ऑफ द एक्यूट फेस रिएक्टेंस सच एज द ESR एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP, वो भी इनमें एलिवेटेड मिलती हैं। रेडियोग्राफिक फीचर्स में एक्सरे कराएंगे तो स्क्वायरिंग ऑफ द वर्टिब्रा बॉडी होती है, बम्बू स्पाइन्स कहलाता है, दैट इज नोन एज द बम्बू स्पाइन साइन। Causes is chronic inflammation, arthritis affecting the spine. Exercises is postural exercises, है ना। इसमें thoracic extension exercises और लेते हैं। Spinal mobility, cat cow stretches, strengthening के लिए core stabilizing exercises, है ना, core exercises वाली वो जो बताया था। And low impact aerobic exercises, swimming and cycling, है ना। ये सारी exercises इसमें जो काम आती हैं। ये बहुत कॉमन है। फाइब्रोमाइल्जिया फीमेल्स में होता है, बहुत कॉमन है, जनरलाइज्ड होता है, पूरे बॉडी को अफेक्ट करता है ना। कोई स्पेसिफिक पॉइंट इसका नहीं होता है।
It is a syndrome characterized by chronic widespread pain of the musculoskeletal origin and tenderness without any specific underlying organic disease. Now, although the fibromyalgia is defined primarily as a pain syndrome, the patient commonly complain of the associated neuropsychological symptoms such as the fatigue, unrefreshing sleep, cognitive dysfunction, anxiety and depression. यानी ये चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट करता है वो. पेन तो करता ही करता है, इसके साथ साथ ये भी करता है. So the disease has a female-male ratio of the 2:1 similar to the other chronic pain conditions. सब जगह पेन बताएगा, मतलब कोई स्पेसिफिक एक पॉइंट पर नहीं होगा. आप कहिए तो हर जगह यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे हाँ ये भी दुखता है, हाँ ये भी दुखता है, सब जगह दुखता है. इसकी स्पेसिफिक डायग्नोसिस बताएंगे अभी. मेनली इसको मल्टी डायमेंशनल इसकी बेसिकली थेरेपी होती है. कई सारी चीज़ें ले जाती हैं. दिमाग के सुकून के लिए भी दिया जाएगा, उसकी स्लीप भी अच्छी कराई जाएगी, है ना. उसको कुछ मल्टीविटामिन भी दिए जाएंगे, पेन किलर्स भी दिए जाएंगे, एक्सरसाइजेज है, साइकोलॉजिकल थेरेपी दी जाएगी, काउंसलिंग कराई जाएगी, है ना. उसकी ये मल्टी डायमेंशन. किसका फाइब्रोमाइल्जिया बेसिकली इज बताया तो आपको, इन्फ्लेमेशन कहीं आपको एग्जिस्ट कर रहा है बॉडी में, वीकनेस है कुछ है ना. तो वो बहुत सारे मेन कॉज इसका कोई ऐसे स्पेसिफिक कॉज नहीं है ना. पेन एंड टेंडरनेस बताता है पेशेंट, न्यूरोसाइकोलॉजिकल सिम्टम्स बताता है, ओवरलैपिंग सिंड्रोम्स होता है जैसे हेडेक है, फेशियल जॉ पेन भी बताएगा, मायोफेशियल पेन भी होगा पर्टिकुलरली इन्वॉल्व इन नेक और बैक, आर्थराइटिस, कोमॉर्बिड कंडीशंस. Basically, this fibromyalgia is often associated comorbid with the common musculoskeletal diseases or infectious और metabolic भी हो सकती हैं और साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी होती हैं. बहुत सारे साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना. फंक्शनल इम्प्रूवमेंट होगा, साइकोसोशल कंसिडरेशन, सिम्टम्स ऑफ ऑफन हैव देयर ऑनसेट एंड आर exacerbated during the periods of the high level real or perceived stress. फंक्शनल इम्प्रूवमेंट हो. तो बहुत सारे इसमें कोई स्पेसिफिक इसका वो कॉज नहीं है. मल्टी बेसिकली इसकी इटियोलॉजी जो है एग्जैक्टली नहीं है, इसलिए इसका जो ट्रीटमेंट होता है कॉम्प्रीहेंसिव मल्टीडिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट होता है ना. मॉडल ट्रीटमेंट प्लान इज रिकमेंडेड इंटीग्रेटिंग द एजुकेशन टू द पेशेंट, इंटरवेंशंस एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज. ये सारी चीज़ें उसको आती हैं इसमें, है ना. इसमें फाइब्रोमाइल्जिया में पेशेंट्स को ऑस्टोपीनिया भी मिलता है ना, वीकनेस भी मिलती है बोन्स की, अंदर विटामिन D3 भी कम होगा, उसका विटामिन D3 भी कम होगा, है ना. स्ट्रेस भी होंगे जो आपको पता नहीं है, फैमिली स्ट्रेसेस हो सकते हैं. इसमें एरोबिक एक्सरसाइजेस, स्विमिंग, रनिंग, वॉकिंग, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आर फाउंड टू बी बेनिफिशियल आर गिविंग ग्लो. दिस इज द ये एक्सरसाइज, दिस इज नोन एज स्वैन, है ना. फुल एक्सटेंशन से आपको ऊपर उठना है, होल्ड करना है. दिस इज स्वैन एक्सरसाइज स्ट्रेंथनिंग द पेक्टोरल मसल, ट्राइसेप्स एंड एंटीरियर डेल्टॉइड मसल्स. ये इस मसल्स की कर रही है. फिर वन लेग अप एंड डाउन, है ना, एक लेग को उठाना दूसरी को नीचे करना, ये भी एक्सरसाइजेज हैं. लेग सर्किल एक्सरसाइजेज, ये बहुत सारी एक्सरसाइज हैं. दिस लेग सर्किल इज बेसिकली रेक्टस फ्यूमोरिस, है ना. ये रेक्टस फ्यूमोरिस, सार्टोरियस, एडक्टर, ये थाई लोअर लिम्स की मसल्स हैं, उनको मजबूत करने के लिए. सिंगल लेग स्ट्रेच, ये सिंगल लेग स्ट्रेच है ना. स्ट्रेचिंग द एब्डोमिनल, स्ट्रेचेस द ग्लूटाई एंड द लंबर स्पाइन. सो स्ट्रेचेस द ट्रंक रोटेटर्स, ये सो है ना. ये रोटेटर्स, ट्रंक रोटेटर्स हैं, है ना. हैमस्ट्रिंग एंड द क्वाड्रेटस लंबोरम मसल्स. स्ट्रेचिंग द रेक्टस एब्डोमिनिस, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑब्लिक ऑल्सो. ये all these all are the muscles. Then is the pelvic tilt on the wall, है ना, wall exercises, sit on a wall and stretching on the ball, है ना. ये exercises सारी. Then common is tendonitis, inflammation, swelling, irritation of any tendon. ठीक है, ये common है. अब उसके different नाम थे आपको, है ना. टेनिस एल्बो था, गोल्फर एल्बो था, है ना. आपका जो पोस्टीरियर का टेंडन का इन्फ्लेमेशन होता है, तो इसका ही कॉमन टर्म है. दिस इज़ द कॉमन टर्म. उनके लिए कॉमन एक्सरसाइजेज जो आपको पहले बता चुके हैं. कार्पल टनल हो ही गया आपको ये. दिस इज़ द डी कॉर्बन्स डिजीज़. डी कॉर्बन्स में बेसिकली ये थम्स है, टेंडन शीथ है ये, एंड दिस आर द टेंडन ऑफ द थम. उसका बेसिकली दिस पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ टेंडन इन द थम and the swelled tendons and their covering rubs against the narrow tunnels through which they passes. They result in a pain at the base of the thumb.
तो इनकी एक्सरसाइजेज है, फिंगर स्प्रिंग एक्सरसाइजेज है ना. प्लेस ए लार्ज रबर बैंड अराउंड द आउटसाइड ऑफ योर थंब एंड द रेस्ट ऑफ योर फिंगर. ओपन योर फिंगर, स्ट्रेचेज रबर बैंड, इसको आगे ऐसे करना है, आगे पीछे. रिस्ट रॉक स्ट्रेचेज है ना. इंजर्ड हैंड को, होल्ड योर इंजर्ड हैंड आउट इन फ्रंट ऑफ यू इन द हैंडशेक पोजीशन. मेक ए फिस्ट विद योर इंजर्ड हैंड एंड बट टक योर थम्स इनसाइड योर पाम, ये वाला इस तरह से. मूव योर रिस्ट डाउन, नीचे करना है. होल्ड फॉर 5 सेकेंड. दिस इज नोन एज द रिस्ट रॉक स्ट्रेच एंड अपोजिशन स्ट्रेच ऑल्सो. So these are the exercises for the de Quervain's disease. ये बहुत सारी exercises हैं इसकी. Then is the trigger finger. Is a painful condition caused by narrowing of the sheath against sheath that surround the finger tendons. Inflammation due to overuse is usually the cause. It is more common in musicians, gardeners and construction workers whose work is hobbies requires repetitive gripping actions. एंड दिस कॉमनली इफेक्ट द मिडिल एंड रिंग फिंगर्स. ये दो मिडिल एंड रिंग फिंगर्स को जनरली इफेक्ट करती है ये. ओकेजनली थम ऑल्सो. अफेक्टेड फिंगर में सीन स्टिफ एंड क्लिक द व्हेन मूव, है ना, एक आवाज़ होती है ना. लॉकिंग होगी, अनलॉकिंग होगी इसकी. स्केचेज इन द बैंड पोजिशन एंड स्ट्रेटन विद ए स्नैप. द फर्स्ट स्टेप टू रिकवरी इज टू लिमिट एक्टिविटी दैट एग्रेवेट द कंडीशन. बार बार उसको करना नहीं है, बार बार खुद से नहीं करना है उसको, एक्टिविटीज़ को, है ना. और इसको इन्फ्लेमेशन सबसाइड होता है नहीं होता है. इंजेक्शन भी लगाते हैं इसमें, यहाँ पर हम लोग इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन स्टेरॉइड देते हैं उसका इन्फ्लेमेशन कम करने. मसल स्ट्रेन, ये आप लोगों के रोज़ खेलने में मसल पुल होता है और इवन मसल टीयर. आप लोगों को फिजिकल हेल्थ एजुकेशन में जनरली रोज़मर्रा की चीज़ें हैं. इम्प्लाइज डैमेज टू द मसल और इस अटैच टेंडन्स. दिस कैन अकर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ विद सडन क्विकली हैवी लिफ्टिंग ड्यूरिंग स्पोर्ट्स और वाइल परफॉर्मिंग द वर्क टास्क. Most muscle strain, pulled muscles are caused by the overstretching muscles. Strains may be minor or severe such as a torn muscle or tendon. Now protection, ये इसका राइस, इसका इलाज होता है. प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस एंड कंप्रेशन, एलिवेशन, इसका इलाज है. प्रिवेंशन आप कैसे करेंगे? अवॉइड इंजरी बाय डेली स्ट्रेचिंग. पहले आप वार्म अप होते हैं, वार्म अप एक्सरसाइजेस करते हैं खेलने से पहले. स्ट्रेच एवरी टाइम बिफोर यू एक्सरसाइज. एस्टैब्लिश ए वार्म अप रूटीन प्रायर टू द एंगेजिंग इन स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस. स्टार्ट एन एक्सरसाइज प्रोग्राम इन कंसल्टेशन विद योर डॉक्टर. So some common treatment approaches to these musculoskeletal injuries include. दीन साहब याद कर रहा है आयशा. So common treatment approaches to musculoskeletal injuries include rest and embolization. Physical therapy. Physical therapy is crucial in rehabilitating musculoskeletal injuries. It involves exercises, stretches and other therapeutic techniques to strengthen the injured area, improve flexibility and restore normal function. ठीक है. एंड द मोटे जो हेडिंग्स हैं. एंड द मेडिकेशन, हम लोग नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देते हैं, NSAIDs कहलाते हैं. कैन हेल्प रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लेमेशन associated with the musculoskeletal injuries. In some cases, corticosteroid injection may be used to alleviate the severe pain and inflammation, as I have told you. जैसे फ्रोजन शोल्डर में है, ट्रिगर फिंगर है, और भी चीज़ें जहाँ पर होता है ना, और उसमें हम लोग देते हैं. सर्जरी इन सर्टेन इंस्टेंसेज वेयर द कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल टू प्रोवाइड रिलीफ, सर्जिकल इंटरवेंशन may be necessary. Surgery can be performed to repair fractures. फ्रैक्चर्स को यूज़ करते हैं, torn ligaments and damaged tendons along with musculoskeletal conditions. Alternative therapies, complementary and the alternative therapies like the acupuncture, ये आयुष वाले करते हैं. Chiropractic and care and massage therapy may be used to manage pain and promote healing in some musculoskeletal injuries. So that's all about the musculoskeletal injuries and diseases. Any query? बताओ क्या पूछना है. मसल स्पाज़म बेसिकली नॉर्मल जो मसल का टोन होता है, टोन होती है नॉर्मल, रेस्टिंग पीरियड में मसल में भी टोन होता है. स्पाज़म मीन्स व्हेन इज मोर देन अनॉर्मल, है ना. स्पाज़म में कॉन्ट्रैक्शन, स्पाज़म ओवरलैपिंग होती है ना. वो बहुत ही आपको फिजियोलॉजिकल लेवल पर अगर आपको डायग्राम आपको दिखाएं तो ओवरलैपिंग ऑफ द मायोफैब्रिल्स वगैरह होते हैं, उसका ओवरलैपिंग होती है, हाँ, है ना उनके. तो उसमें स्पाज़म में जाती है, शॉर्टनिंग हो जाती है. क्या होता है, लेंथ की मसल की जो नॉर्मल लेंथ है, स्पाज़म में जो होगा, स्पाज़म में बेसिकली आपका नॉर्मल फ्लेक्शन नहीं है, वो एबनॉर्मलिटी है, पैथोलॉजी है. शॉर्टनिंग ऑफ द मसल होगी मसल लेंथ की.
उसमें सर अक्सर जो है अपर बैक जो है ना सर इंजरीज होती है, जैसे अभी आपने लोअर बैक का बताया, तो सर अपर बैक अगर इंजरी होती है इनसाइड, अक्सर साइड में होती है वो स्कूपरा के नीचे, तो उसके लिए क्या एक्सरसाइज देनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको रेस्ट कराना, उसका रेस्ट देना है एटलीस्ट फॉर 1 वीक। उसके बाद वो सारी एक्सटेंडिंग एक्सरसाइज करानी है आपको बैक की, ग्रेजुअल मूवमेंट, ग्रेजुअल एक्सरसाइजेस करानी है आपको। रिहेबिलिटेशन कहलाता है, ये आपको रिहेबिलिट करना है। एक दो एक्सरसाइज सर आप बता सकते बताई तो सारी वही बैक की एक्सरसाइजेस थी। फ्लेक्शन एक्सटेंशन हैं? लोअर बैक से अपर बैक से अपर बैक बता रहे, एक्सटेंशन एक्सरसाइज करिए आप उसको। फिर लोअर बैक में एक्सटेंशन अवॉइडेड है, कम करना चाहिए। अपर में है आपको एक्सटेंशन एक्सरसाइज कर लिए, वो भी एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज है, वो फुल एक्सटेंशन की आती है, सेमी और सेमी फ्लेक्स पोजीशन करके, एल्बो फ्लेक्स करके आपको ऐसे उठना है ना। पहले तो खाली आप लेट जाइए आप प्रोन पोजीशन में, खाली हाथ पीछे रख के हल्का सा सर ऐसे उठाइए। जब ये करने लगे आप तो आप हाथ को ऐसे रेस्ट करके इस पोजीशन में उठाइए। जब ये भी करने लगे तो फुल एक्सटेंशन में ऐसे करके उठाइए। ये एक्सरसाइजेज हैं आपकी, है ना। फिर आप आपका अपने उस पर इलियक क्रैश पे ऐसे हिप पे रख के हाथ को पीछे, ये भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज, है ना। सारी एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज हैं आपकी। आपको खाली हाथ ऊपर ले जाइए, दिस इज ऑल्सो एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज पूरी करिए। देखिए बैक में हो रही है पूरे, हाथ उठाइए पूरे, खड़े हो गए, खड़े होइए, खड़े हो, हाथ पूरा उठाइए, फुल पीछे खींचिए ना। हाँ, ये इस तरीके से कोई एक्सरसाइज है सर, ये क्या क्या घुमाना चाह रहे हैं? हाँ ऊपर नीचे से हाँ हाँ, फ़ायदा ही होगा, कुछ भी कर लीजिए आप एक्सरसाइजेज, आप पर्टिकुलर आप कुछ स्पेसिफिक कुछ घुमाना चाह रही है तो पता नहीं है। थैंक यू। Thank you very much, sir. Anything- Lecture about the different deformities and समझ में आया कि नहीं यार, ये बताओ पहले। अच्छा सॉरी। I am also thankful, sir, to Dr. Fazlur Rahman, sir, for sir accept our invitation in a short period of time. So once again, thank you, sir. थैंक यू फॉर अरशद बारी साहब। ऑल्सो ये काटने जा रहे हैं, हमने कहा नहीं हम करेंगे, हम जरूर लेक्चर देंगे। एक्चुअली हमें अभी जाना है, दिल्ली निकलना है तो इनसे Sir very nicely explained about the different deformities of physical fitness and wellness, and generally physical activities come from the different physical characteristics, and that different characteristics of physical abilities shaping the physicality of the human being, and this comes from with bone, muscles, joint, tendon and neuromuscular coordination. If anyone goes beyond the normal range, it means you will come in the any kind of deformities and injuries. So it is an important thing we should learn about the basic functioning and basic जो normal posture through which we can prevent different kind of injuries and disease. So thank you very much once again, sir. और one and very short आपके लिए information है कि कल जो last 2 lectures हैं वो first 2 सेशन में होंगे प्रोफेसर तारिक मुर्तज़ा सर के, और फर्स्ट लेक्चर इन थर्ड जो आप सेशन है उसमें होगा। थैंक यू।